Assalamu alaikum class 5. This is Khalid Salim, and in our today's social studies lecture we are going to read about the next city that is in our syllabus, Lahore. Okay, I hope that you have all written down the three question answers that were related to the first topic of Karachi. Okay, now coming to this topic of Lahore, we are going to read about Lahore. Okay, we are going to study about Lahore from a historical perspective, and then we are going to look into um, the importance of Lahore in Pakistan. Okay, and the important places that are located in Lahore, and then we are going to see what kind of contribution does it make to the economy. Okay, let's start with the reading first. Okay, Lahore has been a center of culture heritage for many civilizations. So लाहौर जो है वो एक सेंटर रहा है. कल्चर का मतलब होता है किसी भी कौम की ज़ुबान, उसका बिलीफ, उसका रिवाज, ठीक है, उसका वे ऑफ लाइफ, उसे कल्चर कहते हैं. हेरिटेज का यही मतलब होता है कि कंप्लीट किसी की सकाफ़त आप कह दें, कोई ट्रेडिशन कह दें किसी कल्चर की, ठीक है. सो ये काफ़ी सिविलाइजेशंस जो हैं ये गुजरी हैं, और ये इसमें लाहौर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एक सिटी रहा है इन तमाम सिविलाइजेशंस में. ओके, इट सर्व्ड एज द रीजनल कैपिटल इन हिस्ट्री थ्रू आउट द गजनवी डायनेस्टी एंड लेटर द गौरी डायनेस्टी इन द 12th एंड द 13th सेंचुरी. सो ये एज अ हिस्टोरिकल कैपिटल भी रहा है. जो पुरानी हमारी एम्पायर्स थी, जो पुरानी हमारी सल्तनतें थीं, जो पुरानी हमारी आप कहते हैं कि बादशाहत थी पुराने ज़मानों की, ठीक है. गजनविद डायनेस्टी एक हमारी थी और एक हमारी गौरी डायनेस्टी थी, ठीक है. सो ये जो है 12 एंड 13 सेंचुरी में ये एग्जिस्ट करती थी दोनों डायनेस्टीज़, और ये इसका बेसिकली एक रीजनल कैपिटल था, ठीक है. ओके, the Mughal period from 1524 to 1752 transformed Lahore to full glory with superb Mughal architecture. So, Lahore gained prominence, Lahore gained attention, especially from the Mughal emperors. Okay, and the period of the Mughal rule, it was from 1524 to 1752. Okay, and it transformed basically Lahore into a completely new city. Okay, why? Because a lot of construction was done during this period. Okay, and Mughal architecture was you can say the buildings, they were constructed according to the Mughal taste. Okay, Emperor Akbar built the Lahore fort. Emperor Shah Jahan added the Shalimar gardens. So Emperor Akbar, he is the one who built the Lahore fort. Okay, and Emperor Shah Jahan, he made the, or he added to this group of buildings, Shalimar Gardens. Okay, while Emperor औरंगज़ेब constructed the बादशाही mosque. और जो emperor हमारे औरंगज़ेब थे, इन्होंने क्या किया? He constructed the you can say this बादशाही mosque. Okay, so contribution has been made by many emperors of the Mughal empire. Okay, and each of these different emperors, they constructed three different buildings. Okay, और थ्री डिफरेंट थिंग्स. एक्चुअली दीज आर नॉट एक्चुअली बिल्डिंग्स. ओके, एक फोर्ट है आपका, एक शालीमार गार्डन्स हैं, और एक आपकी बादशाही मॉस्क है. ओके, मॉन्यूमेंट्स आप कह सकते हैं. महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर्ड लाहौर इन द 19th सेंचुरी एंड मेड इट अ कैपिटल सिटी. एक महाराजा थे रंजीत सिंह, ठीक है, उन्होंने 19th सेंचुरी में लाहौर पे कब्जा किया, और उन्होंने क्या किया कि इसको एक कैपिटल सिटी बना दिया. Many of the Muslim shrines एंड मॉन्यूमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हिज रूल. अब महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया कि जितनी भी हमारी श्राइन्स को हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे आपके दरबार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, श्राइन्स, तो वो डिस्ट्रॉयड हुई थी, और जितनी भी हमारे मॉन्यूमेंट्स थे, हमारी बिल्डिंग्स वगैरह थी जो कि मुस्लिम आपके कहते हैं कि इस्लाम से रिलेटेड थी, दे वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रूल ऑफ Maharaja Ranjit Singh. Okay, now coming to the third paragraph of Lahore. Lahore regained, ठीक है. regained का मतलब होता है to retake, कोई चीज़ वापस ले लेना, ठीक है. Lahore regained या Lahore retook its culture heritage when the British captured Punjab in
1849. So how was the culture heritage of the Muslims, especially in Lahore? It was saved from the Maharaja Ranjit Singh's, you can say, cruel rule. uh, it was saved because the Britishers, they actually took over Lahore in the year 1849. तो उसने लाहौर ने अपना रीगेन कर लिया था कल्चर हेरिटेज वापस, ठीक है. दे कंस्ट्रक्टेड मैनी स्प्लेंडेड विक्टोरियन बिल्डिंग्स. ओके, सो ब्रिटिशर्स दे कंस्ट्रक्टेड मैनी. स्प्लेंडेड का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ग्रेट, गुड, ठीक है. एंड विक्टोरियन बिल्डिंग्स, विक्टोरियन बेसिकली उस ज़माने में जो ब्रिटेन की जो मलका थी उसका नाम था क्वीन विक्टोरिया, ठीक है. सो उसके ज़माने में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जिस स्टाइल से ब्रिटिश आर्किटेक्चर अपना आर्किटेक्ट जो है बिल्डिंग्स का फॉलो करते थे, उस ज़माने की बिल्डिंग्स को हम विक्टोरियन कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द टाइम पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया. Okay, some of the buildings were constructed in Gothic Indian architectural form, which became known as the Mughal Gothic style. Okay, so Gothic basically एक बड़ा ही सिंपल स्टाइल था, और इसमें कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो गॉथिक स्टाइल से जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट की गई हैं. ओके, द लाहौर पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, जीपीओ अगर आप देख लें माल पे, सो दैट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और उसका जो आर्किटेक्ट है दैट इज़ टोटली डिफरेंट. ओके, कायद आज़म लाइब्रेरी एंड नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इफ़ यू हैव एवर बीन ऑन द माल रोड, यू कैन सी कि गॉथिक जो स्टाइल बिल्डिंग्स का होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है, स्ट्रेट सा होता है, ठीक है. एंड ज़्यादा वाइब्रेंट कोई कलर्स नहीं होते, मतलब एक एक आप ये कह दें कि एक सिंपल उसका एक आर्किटेक्ट होता है, एंड नथिंग इज़ एडेड टू इट. आई मीन, अब बिल्डिंग अगर आप देखेंगे आपको बिल्कुल विदाउट एनी जॉय, विदाउट एनी हैप्पीनेस वो आपको बिल्डिंग जो है ऐसे रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है. सो 3 बिल्डिंग्स हमारी लाहौर के अंदर गॉथिक स्टाइल अगर आप देखना चाहते हैं इंडियन गॉथिक स्टाइल में, जिसको मुगल गॉथिक स्टाइल भी कहा जाता है, वो आपका एक जीपीओ है लाहौर पोस्ट ऑफिस, एक आपका एनसी है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, एंड थर्ड इज कायद आज़म लाइब्रेरी, ठीक है. सो दीज आर दे आर एन एक्सलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द colonial period architecture. अगर हमने colonial का मतलब होता है the time period when the subcontinent was a colony of the Britishers. Okay, so उस time period में जो हमारी construction buildings की हुई थी वो एक excellent representation है, एक excellent आप शो पीस कह दें colonial period के architecture का है. Okay, now coming to the next part. Okay, independence movement. Okay, independence movement took root in Lahore when the All India Muslim League made the first declaration for independence and establishment of a separate Muslim homeland. Okay, सो जो हमारी आज़ादी की तहरीक थी वो बेसिकली उसने यहाँ पे अपनी जड़ें पकड़ी थी, इस लाहौर शहर के अंदर अपनी जड़ें पकड़ी थी. कि कब? जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बेसिकली वो अपना एक ऐलान किया था, एक ऐलानिया जारी किया था कि हम लोग जो हैं वो आज़ादी चाहते हैं और एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड जो है ये हमारी डिमांड है. इन मेमोरी ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940 अ ग्रेसफुल टावरिंग मोनूमेंट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड नोन एज मीनार पाकिस्तान. सो बेसिकली इस टाइम पीरियड को कमेमोरेट करने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए, ये जो आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन 23 मार्च 1940 विच इज़ ऑल्सो अ नेशनल हॉलीडे, ठीक है. तो उसी जगह पे जो है हम लोगों ने वी कंस्ट्रक्टेड अ मीनार पाकिस्तान टावर एक्चुअली, एंड दैट टावर इज़ नोन एज अ मीनार पाकिस्तान. ओके, Lahore has been Pakistan's cultural and intellectual center, where Urdu language developed into scholarly, poetic and artistic form. Okay, literature and poetry was encouraged by the मुगल्स. ओके, सो लाहौर जो है वो फिर एक हमारा सकाफ़ती एक शहर बन गया, कल्चर बहुत कल्चरली रिच हमारा शहर बन गया. ओके, बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड द कल्चर ऑफ पंजाब. ओके, और इंटेलेक्चुअल सेंटर का मतलब होता है कि पढ़ाई का एक मरकज़ बन गया, पढ़ाई का, रिसर्च का आपका एक मरकज़ बन गया, ठीक है. और यही जगह है जहाँ पे आपकी इन विच योर उर्दू लैंग्वेज इज डेवलप्ड, ठीक है. एंड इट वाज
used for scholarly purpose as well, academic purpose as well. It was also used for poetry and for other artistic forms, for drama आप कह दें, for making movies. So Urdu basically it developed as a language in this city of Pakistan. Literature और poetry जो थी वो encourage की जाती थी by the Mughals even. Okay, so Mughals they पेड स्पेशल अटेंशन टू लिटरेचर. लिटरेचर हम कहते हैं लिखी हुई बात को, अदब को कहते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर जिस तरह लिटरी है, बुक्स हैं, आपकी पोइम्स हो गई हैं, सही है. सो दे पैट्रोनाइज्ड दीज टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड पोइट्री. ओके. Illama Iqbal, Faiz Ahmed Faiz, and Hafiz Jalandhari are noted poets of the province of Punjab. So three main poets of Pakistan: Illama Iqbal, Faiz Ahmed Faiz, and Hafiz Jalandhari. They are famous poets of the province of. Noted का मतलब होता है they are well known or they are famous. Okay, poets of Punjab. So the main boulevard of Lahore was previously known as Tamal and is now called Sharahe Qaid-e-Azam. Okay, so मेन boulevard का मतलब होता है boulevard, it means a wide street. ठीक है, काफ़ी बड़ी सड़क. ठीक है. So अब ये अगर आप देखें माल रोड जो है वो हमारी काफ़ी बड़ी है. ओके. एंड इट वॉज प्रीवियसली नोन एज माल रोड, बट इट स्टिल नोन एज माल रोड, लेकिन उसका नाम चेंज करके शाराए कायद आज़म इन्होंने रख दिया. दिस ब्यूटिफुली ट्री लाइंड रोड गोज थ्रू द सिटी सेंटर. ओके, ये अब रोड जो है कहाँ तक ट्रैवल करती है? It travels all towards the center of the city. Okay, it has the most famous buildings of the colonial era. Era का मतलब होता है time period. ठीक है, along with the modern buildings of the 20th century such as the Wapta House, Alhambra Hall, Pearl Continental and Avari Hotels. So actually इस रोड पे आपको बहुत ज़्यादा पुरानी colonial टाइम पीरियड की बिल्डिंग्स, जबकि ब्रिटिशर्स जब 1849 पे जब उन्होंने रिकैप्चर करके लाहौर को अपनी कल्चरल हेरिटेज वापस रिटर्न की थी, सो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड से जो बिल्डिंग्स बनी है यू आर गोइंग टू सी देम ऑन द माल रोड एंड अलॉन्ग विथ द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. अब मॉडर्न बिल्डिंग्स में कौन सी हैं? एक वापटा हाउस है आपका, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही पंजाब असेंबली के साथ लगता है, बिलीव. ओके. And you would see Pearl Continental Hotel, it is right on the mall, and Avari Hotel as well, that is near Wapta House. So Alhambra Hall as well. Okay, Alhambra Hall, it's also located right on the Mall Street. Okay, surrounded by fertile plains and irrigated by Ravi River, Lahore became the agriculture center for Punjab. So Lahore जो है वो बड़े ज़रखेज़ मैदानों, उसके प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी इलाका. ठीक है, अब लाहौर के इर्द गिर्द जो है वो क्या है? मैदानी इलाके हैं. और अब इन मैदानी इलाकों में पानी कहाँ से आता है? फ्रॉम द रावी रिवर. इरिगेटेड का मतलब होता है कि जहाँ से पानी आता है इन इलाकों को. ठीक है, एंड दैट कम्स फ्रॉम द रावी रिवर. ओके. लाहौर बिकेम द एग्रीकल्चर सेंटर फॉर पंजाब. तो इस तरह क्या हुआ कि लाहौर जो है वो एक, आप ये कह दें कि एग्रीकल्चर सेंटर बन गया. एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग उगाते हैं, गंदम हो गया, वीट हो गया, सब्जियां, फल वगैरह. ठीक है, दे ऑल आर ग्रोन इन एन एग्रीकल्चर लैंड. ओके. द स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड हिस्टोरिकल पास्ट मेक्स लाहौर द सेंटर ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द कंट्री. अब इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इसका जो हिस्टोरिकल पास्ट है, मतलब माजी जो है, इसको एक बहुत ज़्यादा एक आप कहते हैं कि it makes it quite important as a commercial center throughout the country. ठीक है. After independence, so after we gained our independence, Lahore grew into a progressive industrial town, manufacturing textiles, leather goods, carpet weaving, woolen mills, furniture, sport goods, bronze and copper products, and electronic goods. So after our independence, वी बिकेम एन इंडस्ट्रियल टाउन. ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे थे? हमने यहाँ पे कपड़े की मशीनें लगाई. ठीक है, सॉरी, कपड़े बनाने वाले कारखाने लगाए, चमड़े के कारखाने लगाए. ठीक है, कारपेट वीविंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, कारपेट बनाना स्टार्ट कर दिया. इसके बाद वूलन मिल्स हम लोगों ने लगाई, फर्नीचर, स्पोर्ट गुड्स और तांबे और ये कॉपर वगैरह के लिए हम लोगों ने कारखाने लगाए, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के भी. ठीक है. लाहौर इज़ द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल हब ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब. सो इट्स ऑल्सो अ कमर्शियल का मतलब होता है जहाँ में बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेड एक्टिविटीज़ हो. ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हो. और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग आपका. सो लाहौर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड
cities of Pakistan, and especially in the province of Punjab. Okay. The Wagah border gives Lahore political importance as well. So Wagah border is another, um you can say, sites of attraction in Lahore, ठीक है, and it also gives up it a very politically important position. Okay, the only road border crossing between India and Pakistan. So always remember, जो border crossing by road है, that happens only at one point in Pakistan, and that is the Wagah border. Okay, it connects the city of Amritsar in India with Lahore in Pakistan. So Wagah border जो है, उससे अगर आप क्रॉस करते हैं, सो यूड बी लैंडिंग और यूड बी गोइंग टू अमृतसर, दैट इज़ अ सिटी इन इंडिया, एंड ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम Lahore, the that road. Wagah lies on the Grand Trunk Road, which runs from Bangladesh to अफगानिस्तान. ओके, अब वाघा बॉर्डर बेसिकली ये जीटी रोड पर, अब जीटी रोड कहाँ से रन करती है? इट ट्रेवल्स फ्रॉम बांग्लादेश से आती है और टूवर्ड्स अफगानिस्तान, ठीक है, थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान. मतलब इंडिया से, बांग्लादेश से, इंडिया से गुजर के, पाकिस्तान से गुजरते हुए इट गोज़ टू अफगानिस्तान, ठीक है, इट एंड्स, एंड वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द मोरियन एम्पायर इन द 3rd century बिफोर क्राइस्ट. सो बेसिकली ये ग्रैंड ट्रंक जो रोड है आपकी, इसको स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट हुई थी, आप ये कहते हैं कि 3री सदी थी हज़रत ईसा के आने से पहले, ठीक है. सो इट्स क्वाइट एन ओल्ड रोड. It was later renovated and extended by शेर शाह सूरी in the 16th century. लेकिन ये रोड जो थी, इसको मुरम्मत हुई. रेनोवेट का मतलब होता है यू रिपेयर समथिंग. इसकी मुरम्मत करवाई गई और इसको एक्सटेंड किया गया, इसको बढ़ाया गया, इसको लॉन्ग किया गया, लंबा किया गया बाय शेर शाह सूरी इन द 16th century, ठीक है. ओके जी. ओके, द लास्ट वन जी, समझौता एक्सप्रेस. Okay, Samjhauta Express, the only train service that runs between India and Pakistan, also operates from Lahore. So हमारे पाकिस्तान और इंडिया में एक ही ट्रेन सर्विस रन करती है और उस ट्रेन सर्विस का नाम है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है. और वो चलती कहाँ से है? ये लाहौर से ही चलती है. द सर्विस रन्स बिटवीन लाहौर इन पाकिस्तान एंड दिल्ली इन इंडिया. सो लाहौर से दिल्ली तक की ये ट्रेन होती है और ये ऑपरेट भी दिल्ली से लाहौर वगैरह में ही करती है. लाहौर's population rose rapidly and today it is the second largest city with the number of inhabitants. inhabitants का मतलब होता है people, ठीक है, जो कि शहरी होते हैं किसी जगह के या किसी मुल्क के. टोटलिंग टू 10 मिलियन पीपल इन 2009. सो लाहौर की पॉपुलेशन, उसकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और आज जो है ये तकरीबन सेकंड लार्जेस्ट सिटी है. दूसरा सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का है और यहाँ के जो शहरी हैं लाहौर के, उनकी टोटल तादाद 1 करोड़ लोग हैं और ये कॉन्सेंसस करवाया गया था पॉपुलेशन का इन 2009. सो आई होप दैट you have understood it quite well, and if still some problem arises, you can ask me on WhatsApp, and there's a small question of it. Inshallah, we'll be doing it in our next class. Okay, so your task for this class is that you're going to listen to it and you're trying to you try to comprehend it. Okay, thank you. Allah Hafiz.